Hi everyone, this is Bhumika. Welcome to my channel. So, in this video, I'll discuss the current affairs for January 13th. So, let's start with question number 1. Which company has designed MOU? क्या होता है MOU? Memorandum of Understanding with NSIC. And what does NSIC mean? It means National Small Industries Corporation for digital transformation of MSMEs. And what is MSMEs? It's माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, छोटे और मध्यम वर्गीय बिजनेस जो होते हैं उनको बोलते हैं. अंडर NSIC's ICT. ICT is Information and Communication Technology, Enable Digital Services. तो कौन सी कंपनी के साथ NSIC ने MOU साइन किया है ताकि वो छोटे और मध्यम वर्गीय बिजनेस को वो एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन दे सकें. उनकी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए किसके साथ साइन किए? ये साइन किया है भारती एयरटेल और यू जस्ट कैन से एयरटेल. Okay, so what will they do under this mission? They'll provide the data and voice connectivity and marketing solutions, or you can say cloud security and collaboration to every MSME. Okay, so where are the headquarters of NSIC? It's in New Delhi, and the same for Airtel. Next question is Niti Aayog partnered with which platform to launch revamped women entrepreneurship platform? तो नीति आयोग ने किसके साथ पार्टनरशिप करके लॉन्च किया है ये प्रोग्राम? ये पार्टनरशिप हुई है फ्लिपकार्ट के साथ. एंड या फ्लिपकार्ट के साथ. तो क्या होगा इसमें? इट विल कनेक्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर्स who seek clarification on GST or funding, okay, or progression, anything that is related to business. They'll be connected and they'll be guided. Okay, so Niti Aayog. Let's talk about Niti Aayog. Who is the CEO of Niti Aayog? It's Amitabh, not Bachchan, Amitabh Kant. Okay, and where this event was launched, it was launched in Hyderabad, Telangana. ठीक है, and the headquarters of Niti Aayog are in New Delhi. Okay, और फ्लिपकार्ट के आपके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? ये हैं बेंगलुरु, कर्नाटका. ठीक है. Which city has become the second largest manufacturer of PPE kits and suits? So it's our country, India. Then who is the leading manufacturer? If India is the second largest manufacturer, then the leading manufacturer is none other than China. Okay, and PPE stands for personal protective equipments. Okay. Next question is which country organized the fourth edition of One Planet Summit? One Planet Summit, you can say OPS. It's commonly known as OPS, to protect biodiversity. So it's France. And something that is important about this event is it was held virtually. It was organized virtually. The entire event, the summit, or you can say, was organized virtually. Okay. सो इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था. इंडिया, US, ब्राज़ील इन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था. ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना. एंड व्हाट वाज द थीम ऑफ दिस इवेंट? इट्स लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर. Let me write. Let's act together for nature. Okay, this was the theme for this summit, or you can say event. Now, what is the capital of France? It's Paris, and the currency euro or franc. Okay. Next question is which state bagged the first prize in the state designated agencies category for its effective energy conservation programs? It's Kerala. केरल ने जीता है ये प्राइज. और एक चीज जिस और
अगर ये क्वेश्चन आ जाता है, तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने सबसे ज्यादा प्राइज जीते हैं, तो दैट इज इंडियन रेलवेज. ओके, सो इट हैज bagged 13 prizes in total. ओके, सो ये अवार्ड दिया कब गया है? ये एक आपका इवेंट हुआ था, 30th नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड्स. ठीक है, उसमें ये सारे आपके एनर्जी से रिलेटेड अवार्ड्स दिए गए हैं. एंड हु ऑर्गेनाइज दिस इवेंट? इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पावर, MOP, मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, BEE. तो इन दोनों ने मिलकर ये ऑर्गेनाइज करवाया है. ओके, okay, let's talk about Kerala once. So the capital of Kerala is Thiruvananthapuram, which was formerly known as Trivandrum. Okay, and who is the CM of Kerala? It's Pinarayi Vijayan. And the governor is Arif Mohammed Khan. Okay, what is the name of only Indian student who is a part of the 6-member winning team of NASA App Development Challenge? NASA क्या है? स्पेस एजेंसी है ये. कहाँ की है स्पेस एजेंसी? USA की. ओके, तो कौन वो अकेला स्टूडेंट था जो कि ऐप डेवलपमेंट चैलेंज था एक? आई डोंट नो वेदर यू आर अवेयर और नॉट, आई विल एक्सप्लेन इट लेटर. सो एक ही स्टूडेंट था जो इस 6-member टीम का पार्ट था, जो टीम जीती है इस ऐप चैलेंज में. यह है आर्यन जैन. ही बिलोंग्स टू गुरुग्राम, हरियाणा. गुरुग्राम हरियाणा से है ये बच्चा, हाई स्कूल स्टूडेंट है. और ये जो ऐप चैलेंज था, ये ऐप चैलेंज आपको हुआ है आर्टेमिस मिशन के लिए. आर्टेमिस मिशन क्या है? ये नासा का मिशन है. इस मिशन में नासा अपनी पहली महिला, पहली वीमेन, फर्स्ट वीमेन एंड द नेक्स्ट मैन, और अगले आदमी को वो 2024 तक मून पे भेजने के लिए मिशन है कि मून पे भेज देंगे पहली महिला को और अगले आदमी को. ठीक है, तो उस ऐप के लिए उस मिशन के लिए ये चैलेंज था. इसमें क्या करना था? दिस किड्स, आई मीन ऑल द पार्टिसिपेंट्स हैव टू डेवलप अ ऐप एप्लीकेशन. ठीक है, और ये एप्लीकेशन क्या करती? जस्ट टू विजुअलाइज द लूनर साउथ पोल, टू असिस्ट इन मिशन प्लानिंग एंड एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज. ओके, तो ये था इसका आर्टेमिस जो मिशन है. इसका पूरा नाम है आर्टेमिस नेक्स्ट जेन स्टेम. ओके, मून टू मार्स. ठीक है, तो ये अकेला इंडियन था विनिंग टीम का जो पार्ट था. हु इज द न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ किर्गिस्तान? तो कौन है? ये है जैपारोव सैदिर नुरगोजोविक. ठीक है, ये जोकोविच कान में को नाम याद आ गया. कौन है जोकोविक? बताना मुझे. बैन भी किया था अभी, मतलब बैन तो नहीं पर हाँ बहुत क्रिटिसाइज किया था उनको एक चीज के लिए. वो भी बताना कि इस चीज के लिए बहुत अभी क्रिटिसाइज हुए थे वो. तो ये बहुत ही अजीब सा नाम जो है, ये प्रेसिडेंट बने हैं अभी किर्गिस्तान के. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज who will head high level committee to mark Netaji's 125th birth anniversary? मैंने मेरी पुरानी वीडियोस में बताया था, इनकी एक नीस थी, भतीजी थी इनकी, जिनकी अभी डेथ हुई है. बताना उनका नाम क्या था. देखते हैं आप लोगों को कितना याद है, कितना याद रखते हो. तो कौन हेड करेगा उस कमिटी को? हु विल गोइंग टू हेड दिस कमिटी? इट्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. ठीक है, अमित शाह भी इसके होंगे, इसमें इस कमिटी में होंगे अमित शाह भी. और ये अभी इतनी न्यूज़ में क्यों आ रही है? ये 125th एनिवर्सरी ही इतनी न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ये जो इवेंट चलेगा ना, ये पूरा 1 year तक चलेगा. ओके, इट्स अ 1 year long celebration and it is going to start from
सॉरी 23rd of January 2021. ओके, सो कहाँ कहाँ होगा ये सेलिब्रेट? इट विल बी सेलिब्रेटेड इन दिल्ली, कोलकाता and all other places which are associated with Azad Hind फौज. ये इन्होंने ही बनाई थी. ठीक है, तो यहाँ से मेरा मतलब है पूरा इंडिया में भी और ओवरसीज भी. ठीक है, हर जगह ये सेलिब्रेट की जाएगी. तो इस दिन इनका बर्थडे होता है, इसलिए हाँ बर्थ एनिवर्सरी है तो ऑब्वियसली बर्थडे ही होगा, पर 125th बर्थ एनिवर्सरी है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज प्रोफेसर शशि कुमार एम चित्रे? कौन थे ये? इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, पर हमारा जानना जो जरूरी है वो है पद्म भूषण अवार्ड. ठीक है, तो ये कौन थे? ये थे आपके एस्ट्रोफिजिसिस्ट एंड मैथमेटिशियन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु ऑथर्ड द बुक अनस्क्रिप्टेड कॉन्वर्सेशन ऑन लाइफ एंड सिनेमा? ठीक है, तो कॉन्वर्सेशंस ऑन लाइफ एंड सिनेमा, इस नाम से हमें एक चीज तो हम सोच सकते हैं कि कुछ कोई ना किसी ने तो ऐसा लिखा, मतलब जो भी ऑथर है इस बुक का वो कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो सिनेमा से कहीं ना कहीं रिलेटेड होगा. सो वी हैव हियर वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स और द स्क्रीन राइटर and one of the famous screenwriters of cinema here. Okay, it's Vidhu Vinod Chopra and Abhijat Joshi. Okay, तो इनकी जो फिल्म्स हैं वो आप बोल सकते हो, जो मुन्ना भाई की सीरीज है ना, मुन्ना भाई MBBS, लगे रहो मुन्ना भाई, वो वाली सब ये हैं इनकी. और 3 इडियट्स भी इनकी है, इनका प्रोडक्शन हाउस है खुद का. ठीक है, और इनकी भी है लगे रहो मुन्ना भाई, और PK है और संजू है, स्क्रिप्ट राइटर थे ये इन मूवीज के. सो दैट्स हाउ दे आर रिलेटेड टू सिनेमा. तो इन दोनों ने लिखी है बुक अनस्क्रिप्टेड कन्वर्सेशंस ऑन लाइफ इन सिनेमा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है, कब सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल यूथ डे? इट इज सेलिब्रेटेड ऑन January 12th. कल ही था युवा दिवस जिसको बोलते हैं, नेशनल यूथ डे. ठीक है, तो व्हाई इज इट सेलिब्रेटेड ऑन January 12th? Just to mark the birth anniversary of Swami Vivekanand. Okay, so yesterday it was 158th birth anniversary of Swami Vivekanand. So just to honor his teachings, we celebrate this day. Okay, तो एक और चीज कल हुई थी, क्या हुआ था आपको पता हो, याद हो? चलो बता देती हूँ. नेशनल यूथ फेस्टिवल का शुभारंभ हुआ है कल. इसकी ओपनिंग सेरेमनी थी कल. कहाँ थी? दिल्ली में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज स्टार्टेड वन टाइम सेटलमेंट स्कीम फॉर ट्रेडर्स? ठीक है, कौन सी स्टेट ने स्टार्ट की है? ये स्टार्ट की है आपकी पंजाब ने. ओके, सो व्हाट विल इट डू? इट विल जस्ट हेल्प ट्रेडर्स टू सेटल देयर पेंडिंग एरियर्स अंडर पंजाब वैल्यू एडेड टैक्स. ओके, सो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पंजाब? इट्स चंडीगढ़. अच्छा मुझे बताओ, एक और स्टेट की कैपिटल है चंडीगढ़, कौन सी स्टेट है वो? ठीक है, एंड हु इज द CM ऑफ पंजाब? इट्स कैप्टन अमरिंदर सिंह. एंड हु इज द गवर्नर ऑफ पंजाब? इट्स VP सिंह बदनोरे. विच स्टेट हैज स्टार्टेड आरोग्य मेला? कौन सी स्टेट ने स्टार्ट किया है? उसी स्टेट ने स्टार्ट किया है जिसने थैला बैंक स्टार्ट किया है. इन माई प्रीवियस वीडियो आई टोल्ड यू अबाउट दिस थैला बैंक. और उसी सिटी में स्टार्ट हुआ है जिस सिटी में थैला बैंक स्टार्ट हुआ था. इस आरोग्य मेला
It is started in UP by CM योगी आदित्यनाथ. ओके. और यूपी की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल. एक और जगह की भी गवर्नर है ये, एमपी की. ओके. सो क्या किया जाएगा? एवरी संडे, हर संडे को ना, चाहे वो रूरल हो या वो अर्बन हो, हर जगह के हेल्थ सेंटर्स पे ये मेला ऑर्गेनाइज होगा. ओके. व्हाट इज द फोकस कंट्री इन 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ गोवा? एक तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि हो कहाँ पे रहा है, बाद में देखेंगे फोकस कंट्री को, तो ये हो कहाँ पे रहा है. सो इट इज ऑर्गेनाइज्ड इन गोवा. तो ये 51st एडिशन है इस साल. सो विच कंट्री विल बी द फोकस कंट्री हियर? इट्स बांग्लादेश. ओके. मुझे एक बात बताओ, बांग्लादेश पहले इंडिया का पार्ट थी या पाकिस्तान का? किसका पार्ट थी? या फिर चाइना का पार्ट थी? बताओ कहाँ का पार्ट थी? क्या पता अफगानिस्तान का भी हो. तो ये पार्ट थी पाकिस्तान का. ठीक है. बहुत अटपटा सा लग रहा होगा सुनने में, जो मतलब पहले किसी ने बहुत ज्यादा जीएस नहीं पढ़ी है उसके लिए होगा. पर हाँ, पाकिस्तान का पार्ट थी. बाद में इसको विभाजन मुझे बताना इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट है. कब इसको बांग्लादेश बनाया गया है? तो पहले इसको जानते थे ईस्ट पाकिस्तान के नाम से. ठीक है. तो इंदिरा गांधी ने किया था ये विभाजन. मुझे बताना कब किया था. इन चारों में से कोई ऑप्शन है या कुछ नहीं है, कुछ और ही है, तो वो भी बताना. ठीक है. तो बांग्लादेश होगी फोकस कंट्री. इस कंट्री का जिक्र होगा फिल्म फेस्टिवल में इस साल. रिसेंटली इंडिया हैज डिस्कवर्ड लिथियम भंडार. लिथियम का भंडार डिस्कवर हुआ है बहुत सारा. कौन से स्टेट में हुआ है वो? ये हुआ है आपका कर्नाटका में. ठीक है. कैपिटल क्या है कर्नाटका की? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कर्नाटका? इट्स बेंगलुरु. एंड द सीएम ऑफ कर्नाटका इज वाजूभाई वाला. यार इसका एक क्वेश्चन ना रोज आ जाता है कर्नाटका का, और मैं रोज आपको बताती हूँ, तो ये तो अब बिल्कुल ही याद हो गया होगा आपको अच्छे से. कर्नाटका के गवर्नर कौन है? बीएस येदियुरप्पा. बताना मैंने कुछ गलत बताया है तो अभी. विच कंट्री हैज टॉप हेनली पासपोर्ट इंडेक्स? बताओ. जापान. और ये चीज़ इंपॉर्टेंट क्यों है? हर साल भाई सिंगापुर आपकी करती थी, इस बार जापान ने कर दिया. इसके आई गेस 191 पॉइंट्स हैं, इसको मिले हैं 190 पॉइंट्स. और इसके बाद है थर्ड नंबर पे दो कंट्रीज, जर्मनी एंड साउथ कोरिया. 180 विद 189 पॉइंट्स. ओके. सो जापान ने इस बार टॉप किया है. सेकेंड नंबर पे सिंगापुर है. थर्ड नंबर पे आपके जर्मनी एंड साउथ कोरिया है. आपके दिमाग में आ रहा होगा इंडिया की रैंक क्या है. तो इंडिया तो बहुत पीछे है. 85th रैंक है विद जस्ट 58 पॉइंट्स इन इट्स पॉकेट. ओके. इसमें ना सारे फैक्टर्स देखे जाते हैं, किसका पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, सबसे ज़्यादा सिक्योर है, सबसे ज़्यादा चीज़ों पे बेस करता है. तो उस बेसिस पे इनको पॉइंट्स मिलते हैं. दे आर गिवन पॉइंट्स and on that basis only they decide like who is the topper and who has the strongest password. Sorry, not password, it's passport. Which country has declared emergency due to COVID-19? ये मलेशिया ने डिक्लेयर की है भाई. इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है मलेशिया में. तो मैंने आपको ना एक बताया था कि हमारी एक स्कीम थी जिसको अभी 6 साल पूरे हुए हैं. 2015 में लॉन्च की थी. कौन सी थी वो स्कीम जिसको मलेशिया ने हमसे कॉपी किया है? जल्दी से बताओ मुझे कमेंट में नीचे, फटाफट. याद होना चाहिए ये तो आपकी मलेशिया की करेंसी क्या है? रिंगिट. और यहाँ की कैपिटल क्या है? कुआलालंपुर. ओके.
अच्छा, एक और बात बताओ, प्रेसिडेंट होते हैं क्या मलेशिया में? प्रेसिडेंट होते हैं मलेशिया में? प्राइम मिनिस्टर होते हैं क्या यूएसए में? बताना ये सब बातें भी मुझे। और आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं मलेशिया के, वो है मुहिद्दीन यासिन। ठीक है, स्पेलिंग कुछ ऐसी थी, मुहिद्दीन यासिन। ओके, next question is, who has chosen as the representative of BCCI in ICC board? BCCI का रिप्रेजेंटेटिव इसे चुना गया है, आईसीसी बोर्ड में चुना गया है जय शाह को। वो इस जय शाह, शाह सुनते ही आपको पता चल ही गया हो वैसे तो। ही इज द सन ऑफ अमित शाह। अमित शाह तो पता ही होगा कौन है, होम मिनिस्टर। ओके, सो खाली ये उनके बेटे नहीं है, ये सेक्रेटरी भी हैं आपके बीसीसीआई के। तो इनको एज अ रिप्रेजेंटेटिव चुना गया है अभी आईसीसी बोर्ड में बीसीसीआई का। और बीसीसीआई आपकी क्या है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। एंड आईसीसी क्या है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ओके, अच्छा ये बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है? दादा, कॉमनली नोन एज दादा, सौरभ गांगुली। ओके, आई थिंक इट्स द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। Who has been appointed as the Chief Justice of Guwahati High Court? मैंने आपको ऑलरेडी 2 हाई कोर्ट के मैं बता चुकी हूँ पहले भी, जिनकी अभी रिसेंट अपॉइंटमेंट हुई है। अभी मुझे बताना मैं किन किन के मैंने बताए थे पुरानी वीडियोस में, देखते हैं कितना याद है आप लोगों को। सो ये है सुधांशु धुलिया। ठीक है, इनको अपॉइंट किया है गुवाहाटी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। ठीक है, इंडिया के कौन है चीफ जस्टिस? फटाफट बता दो, कल और आज तो ये बहुत है न्यूज में, किसान आंदोलन की वजह से। ठीक है, किसान आंदोलन पे स्टे लगा दिया है ना सुप्रीम कोर्ट ने, कि अभी उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी। स्टे का मतलब ये नहीं कि उनको बिल्कुल रद्द कर दिया है, नहीं। उन्होंने कहा है कि अभी स्टे लगा रहे हैं, इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, और उसके लिए 4 बंदों की एक कमेटी भी बनाई है इन्होंने, कि ये 4 बंदे डिसाइड करेंगे कि क्या होगा, पर अभी के लिए नहीं होगी उसकी इम्प्लीमेंटेशन, तो ये स्टे लगा दिया है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, क्योंकि इन्होंने ही बोला है सब। ठीक है, तो बताओ मुझे कौन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फिर देखते हैं। तो गुवाहाटी हाई कोर्ट के अपॉइंट हुए सुधांशु धुलिया। कहाँ है गुवाहाटी? असम में है। ठीक है, असम की कैपिटल है आपकी दिसपुर। और यहाँ के सीएम है सर्बानंदा सोनोवाल। सॉरी, यहाँ के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। ओके, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। अगर कुछ भी डाउट हो ना, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी, जस्ट पोस्ट इट in the comment section. I'll be happy to answer. And if you like my video, then share it as much as you can and subscribe to my channel. And thank you so much for supporting. पता नहीं कब 300 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए, तो आई एम सो हैप्पी फॉर दैट एंड आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। सो अगर बाकी कुछ भी आपका डाउट हो तो बता देना। और आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैंने एक टेलीग्राम चैनल भी बना लिया है, जिसमें मैं सारी पीडीएफ शेयर करती हूँ। तो 6 जनवरी से लेके मैंने कल तक 12 जनवरी तक ये सारी पीडीएफ्स मैंने डाल दी हैं टेलीग्राम चैनल पे। तो आप सब लोग ज्वाइन कर लेना इसको, और बाकी लोगों के साथ भी टेलीग्राम चैनल के लिंक को शेयर कर देना जिनको भी ज़रूरत हो। मैं डाल दूंगी रोज़ करंट अफेयर्स, ये वाली पीडीएफ में मैं आज शाम तक डाल दूंगी। बाकी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप वो पोस्ट कर सकते हैं चैनल में, कोई क्वेश्चन हो किसी भी सब्जेक्ट का, मैं उसको आंसर कर दूंगी वहाँ पे। आप कमेंट बॉक्स में भी पोस्ट कर सकते हैं। या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। जो भी एग्ज़ाम आप दें उसके लिए ऑल द बेस्ट। और या बाय, थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।